Bismillahirrahmanirrahim. We have studied our ratio analysis, and previously we have discussed the first ratio, which is about the liquidity, which shows that how firm is liquid, how company is liquid. If some current liability holders ask about their payments, so how firm is capable to pay their payments within 1 year current liabilities. So we discussed that liquidity ratios have mainly two ratios: current liability uh, and current ratio and quick ratio. So we will go towards the asset management ratios, and we somehow discussed we have multiple type of asset management ratios: inventory turnover and yes, we discussed it, so we will go fastly. So we connect these ratios with other, because in DuPont analysis we have multiple type of ratios. We will cover comprehensively there. So inventory turnover, especially day sales outstanding. Day sales outstanding shows the receivables upon annual sales upon 365, means how many days in your years. So we have discussed this one. So we will go fastly. Day sales outstanding, we have the example we already discussed, and further asset management ratios in your book is available in chapter number 4. Also, we have debt management ratios and also the market ratios. We already discussed this one. Profit margin also we have discussed. So now we will go towards the market value ratio related ratios. We discussed already somehow this one. But now we are going to combine these ratios together, and we will do some practice. This called DuPont analysis. DuPont analysis is a very uh, important concept during the finance. So we will discuss this DuPont analysis. In DuPont analysis, if you see that there are actually we have discussed many ratios, so it would be useful to see how they work together to determine the ROE, return on equity. Return on equity, for this, we use DuPont equation, a formula developed by chemical giants financial staff in 1920. It is shown here for allied and food processing industry. Actually, this is taken from the book, and they in started by the allied and food processing industry analysis. So for the DuPont analysis, we have main equation, main formula is ROE is equal to ROA multiply by equity multiplier. Actually, this is the abstract form of the formulas, and it is very important. If we open up further to this formula, actually return on equity, we can get return on equity by the opening the return on asset. And return on asset, how we can find? Profit margin multiply by the total asset turnover. By the multiplying profit margin multiply by total asset turnover, we can get to return on asset. So equity multiplier as it is we found. So this is second layer of the formula when we are going to open this formula. But more dis more detailed formula or actual detailed formula, we have net income upon sales. Actually, this is profit margin. Already we discussed above, profit margin is net income. It means profit or into sale. Profit divide by sales जो है profit margin हमें से पता चल सकता है.
सही। टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये जो है टोटल सेल्स टर्नओवर हमें इससे पता चल गया। और इक्विटी मल्टीप्लायर जिसका तस्करा ऊपर वाले दोनों उसमें है, लेयर्स में, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल कॉमन इक्विटी। अच्छा, अब इसको जो है हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सवाल है जो कि आपकी बुक का ही सवाल है और बुक के अंदर मौजूद है। 14 एडिशन ऑलरेडी आपके साथ मेरा ख्याल है शेयर किया जा चुका है या कर दिया जाएगा आपके एलएमएस पे। और 4.6 इसका जो है वो है। तो ड्यू पॉइंट एंड आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करने के लिए हम ड्यू पॉइंट स्टार्ट यानी यूज करते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूले से अभी देखा। अ फर्म हैज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2%, ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। इक्विटी मल्टीप्लायर 2.0, इट्स सेल्स आर 100 million and it has total assets of 50 million. What is ROE? अब ROE मालूम करने के लिए इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, तो अगर उसको हम जस्ट उस फॉर्मूले के अंदर पुट करें, फॉर्मूले को पुट करने के बाद हम देखें मेन। अच्छा, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप फाइनल लेयर जो है ना उसको पुट करें। उसमें फायदा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप पुट करते जाएंगे और उसके नतीजे में जो है उसके नतीजे में आप जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल लेयर जो है इसकी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट इनकम, यानी ये जो हर एक फॉर्मूले को हमने मजीद ओपन कर दिया। अगरचे इसमें जो है ये जो है हमने 3 तरह के फॉर्मूलाज पढ़े, लेकिन इसको फाइनल लेयर ऑफ द फॉर्मूला आपने पुट किया, उसको अगर याद रखा हुआ है तो उसमें अगर देखें प्रॉफिट मार्जिन टोटल करके इन्होंने हमें पहले से दिया हुआ है सवाल के अंदर 2%। इसी तरह इक्विटी मल्टीप्लायर 2.0 दिया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या चीज मिसिंग है? सेल्स भी दी हुई है और टोटल एसेट्स भी दिए हुए हैं। तो जस्ट इन सबको जो है वो हम कैलकुलेट अगर करेंगे, अगर, तो हमारे पास ROE निकल के आ जाएगा। सही। अच्छा, ये तो है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली बुक के स्टाइल में। थोड़ा सा हम इसको और आसान तरीके से भी अभी जब हम प्रैक्टिस आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे तो हमें और इसका आसान तरीका पता चल जाएगा। सही। एक हमारे पास ये आ गया। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस हम इसकी कर सकते हैं। इसी तरह 4.8 पे है और इसके जो है वो हमारे पास 4.3 पे है। तो ये कुछ इसके सवालात जो है जो आपको बुक की मदद से मिल सकते हैं, लेकिन जो सवाल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा आसान भी है और उसमें जो है वो हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम जो है वो 3 सवालात देखेंगे और ये तीनों सवालात बेसिकली काफी आसान हैं अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दें और उस लिहाज से देखें तो काफी आसान है। लेकिन अगेन इसमें चूंकि मल्टीपल चीजें हैं, कुछ चीजें हमने अब तक डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीजें जो है वो हो सकता है आपने पहले पढ़ी हों, वरना हम अगली क्लासेस में उसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है फिलहाल हम इसको जो है वो करते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हमें ये डेटा दिया गया है। अगर हम इस डेटा को देखें तो बेसिकली ये आ गई आपकी हेडिंग्स। इसको मैंने कंट्रोल और बोल्ड कर दिया। नेट सेल्स दी गई है। अगेन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें प्रीवियस क्लासेस में, यू हैव स्टडीड अबाउट द अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ही ये 2 पार्ट्स हैं, एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है बैलेंस शीट। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन, इनकम स्टेटमेंट 2023 की आ गई एक कंपनी की, इसी तरह बैलेंस शीट 2023 की आ गई। अब इसका जो है वो हम फर्दर एनालिसिस तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम रेशोज वगैरह पढ़ के आए हुए हैं, तो करंट रेशो अगर निकालना है, अगर हमें करंट रेशो निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? करंट रेशो हमें पता है कि करंट रेशो में हमें क्या करना होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है वो हमारे पास, अगर 2023 का करंट रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट रेशियो जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसका जो है करंट रेशियो निकालें, कोई जल्दी से ट्राई करें, और चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं इसके बाद। अच्छा जी। नहीं, अभी एलएमएस पे अपलोड नहीं है ये, लेकिन अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका कुछ पोर्शन जो है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सही। तो अच्छा, अब इसका कोई और क्रॉस चेक कर ले। करंट रेशियो यही बन रहा है। अब ये 2023 का और 2024 का एक्चुअली दो अलग अलग करंट रेशियोज निकलेंगे। सही, हमारे पास जो डेटा है, अगर इसमें देखें, हमारे पास 2023 का डेटा भी है, 2024 का भी है। तो आप इसके दोनों के प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे चल के। तो टोटल करंट एसेट्स आपकी 2023 में है 300, और टोटल करंट एसेट्स हैं 2024 में 340। इसी तरह करंट लायबिलिटीज 160 और 180 है। तो दोनों को ट्राई कर लें, 2023 का कितना बन रहा है करंट रेशो, और 2024 का कितना बन रहा है। प्रैक्टिस के वक्त आप कोशिश करें, जितना मैक्सिमम करेंगे उतना अच्छा है। 1.85 875 2023 का है, 24 का है, 24 का है। सही है, इसको लाजमन मेंशन कर दें, क्योंकि जब इस तरह वाली सिचुएशन हो तो जाहिर सी बात है, एक्चुअली हमें लेना होता है लास्ट ईयर को। सही है, हम करंट ईयर का ही एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मेंशन कर दें 2024 में आपका 1.88 आ गया। और उसके बाद 2023 का भी कैलकुलेट करके बताएं कि इनका करंट रेशियो पहले के मुकाबले में बढ़ा है या कम हुआ है। 2023 को भी हम कैलकुलेट करें, अगर सेम फॉर्मूला आपके पास अगर जहन में बिल्कुल क्लियर है। अब फॉर्मूला तो जाहिर सी बात है याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आपके जहन में क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, 2023 का भी 1.875 है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे? इसकी अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल गई, 2023 का ये था 1.875, 2024 का जो है 1.88, तो हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये जो है करंट रेशो पहले के मुकाबले में सेम है, सिमिलर है, वेरी सिमिलर, क्लोज है, तो कोई सिग्निफिकेंट फर्क जो है वो नहीं पड़ा। सही है, इंटरप्रिटेशन आप इसकी कर सकते हैं। मजीद भी हमारे पास एक सैंपल भी है इसके, हम बाद में उसको भी सॉल्व कर लेंगे। सही। अच्छा जी, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब ये फॉर्मूला जो है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको ब्रैकेट में करके हम कह सकते हैं कि ये अपॉन करंट लायबिलिटी। सही है, तो क्विक रेशो हम निकाल लेंगे। अगेन इसमें भी 2024 का पहले निकाल लें, करंट ईयर का, तो आपके लिए आसान हो जाएगा मामला। सही, करंट रेशो। अच्छा, ये शो कर रहा है कि 9 मिनट रह गए हमारी मीटिंग में। तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट स्टूडेंट ने ज्वाइन किया होता है, जब से जो है वो इस लिंक को एक्टिव कर देता है, 40 मिनट वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि सेम एक्चुअल टाइम पे ही जो है वो लिंक शेयर किया जाए, ताकि ऑन टाइम हमारे पास 40 मिनट्स तो कंप्लीट मिले, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं मिल रहा है। तो अब अगर इन दो को जो हमने कर लिए सॉल्व, 340 ये इन्होंने 2024 का लिया है, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। 340 यानी 2024 का लिया है, और उसको डिवाइड किया 180 से, 180 से डिवाइड किया है, 180 से डिवाइड किया है 340 और 180 से, तो 1.89 जो है ये करंट रेशो इन्होंने कहा। 1.89, 2024 का 1.89 क्यों है? कि ये राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 189 की तरफ जाएगा ये ना।
क्विक रेशो इसी तरह आ गया। चलें, ये जो है एज अ प्रैक्टिस के, क्योंकि टाइम मीटिंग हमारी क्लोज हो सकती है किसी टाइम पे, तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ये कुछ सवालात आपको एलएमएस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इसको सॉल्व करना है आपने, सही। तो प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। अगेन इसमें जो है वो अभी हमने जो है वो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूलाज आपको बताया गया है बुक के 14 एडिशन के बुक के पेज नंबर 120 पे जो है फार्मूलाज अवेलेबल है। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। डेटा जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये दोनों से मिल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसको जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक के हवाले से किसी का कोई सवाल है, कोई बात है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे आपके एलएमएस पे, वहाँ आपने इसको प्रैक्टिस करना है और इसको सॉल्व करना है। हाँ, बल्कि अच्छा है अभी जो टाइम है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको ट्राई करता हूँ अपने मोबाइल से ज्वाइन करने की, ताकि आपकी आवाज़ तो सुन सकें। इसमें जो है सवाल के आंसर, एनी थ्योरी गोइंग टू कम इन द मिड्स ओनली न्यूमेरिकल्स। नहीं, आपका जो चैप्टर 1 है उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगर टाइम हमें वो हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज तो आप लोग थ्योरी तो खुद भी पढ़ लेते हैं ना, तो चैप्टर 1 जो है वो फोकस करें खासतौर पे। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स का जो है वो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की गई है, तो उससे जो है वो थ्योरी जो है वो आप उसको पढ़ लेंगे, सही है ना। शुरू के आप आउटलाइन को अगर देखें ना, तो जो थ्योरेटिकल चीजें उसमें हैं शुरू की, उससे जो है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। अच्छा, इसमें अगर इसके हवाले से बात की जाए, क्योंकि जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि टीचर ने आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस के हवाले से बताया है, तो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमारे पास है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस की बात करें, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह इसका हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे करेंगे और वर्टिकल कैसे करेंगे। चैट में आप लिख सकते हैं जब तक जो है वो हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। इज देयर एनीवन? आप लोगों ने जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस पे काफ़ी जो है वो पढ़ाया था आपको प्रीवियस टीचर ने, तो उस हवाले से ये सवाल मैं दूंगा आपको एलएमएस पे, और आप लोग जो है वो इसको ट्राई करेंगे। अगर और ट्राई करके जो है वो मैं देखता हूँ अगर कोई सबमिशन का सिस्टम होता है एलएमएस के थ्रू, तो उसके बाद फिर मैं जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा कि तैयारी करके हम फिर, अगर तो बहुत अच्छा आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस है, तो अ, उसके अकॉर्डिंगली हम वो करें। लेकिन अदरवाइज जो है अगर उसमें ज़रूरत हुई तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये सवाल आया है एक स्टूडेंट की तरफ से, सर क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो आर सेम। जी बिल्कुल, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो जो है वो हमें सेम बताया गया है। जैसा कि हम इसमें जाते हैं तो आप जब देखेंगे क्विक रेशो का नाम आ रहा है, उससे पहले उसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशो भी आ रहा है। ये क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, तो ये दोनों तकरीबन सेम आ रहे हैं। ये फॉर्मूला ये आपकी बुक से भी जो लिया गया है, उसी बुक के 15 से, तो दोनों सेम है। सही है। और मजीद 3 मिनट हैं, किसी की कोई जहन में कोई बात हो, ये क्लास खत्म होने में 3 मिनट बाकी हैं, तो किसी के जहन में कोई बात हो।
खास तौर पे इस हवाले से कोई कोई बात करना चाहे, ये वर्टिकल एनालिसिस, और अब जैसे ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है। और इसके साथ आप देखेंगे तो सबसे पहला ही इसमें ए में क्या है, रिक्वायरमेंट ए के अंदर, परफॉर्म हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट फॉर 2024 एंड 20 एज कंपेयर टू 2023। तो इस हवाले से किसी के जहन में कोई चीज है जो प्रीवियसली आप लोगों ने बताया कि पढ़ा है, अब जैसा भी आपको आता है वो आप करके सॉल्व करके सबमिट करा दीजिएगा। अगर तो बहुत अच्छा नहीं भी आता है कोई मसला नहीं है, आप जैसा आता है वैसा करके सबमिट करा दीजिएगा। उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर तो बिल्कुल सही हुआ तो हम थ्योरी वाले पोर्शन की तरफ मूव कर लेंगे। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हुई तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस 3 क्वेश्चंस में अवेलेबल कर दूंगा आपको ऑनलाइन। आप लोग अकॉर्डिंगली इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है, जो आज हमने पढ़ा है मेनली उसको उसकी तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। उसकी वजह ये कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास और इस क्लास में रेशोज को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो उसकी बी है, ये तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि ऑलरेडी इस पे हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और ड्यू पॉइंट एनालिसिस एनालिसिस के हवाले से आपको जो है वो एक वीडियो मिल जाएगी। तो इस इन ये तो आपको जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस चूंकि मैंने खुद आपको नहीं पढ़ाया, तो अभी मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। सही, तो प्रैक्टिस करके जो है वो आप इसको जो है रखें, ताकि ये है कि बेहतर अंदाज में पता चल सके। सही, चले आखिरी मिनट है तो कोई और बात नहीं है तो हम इसको एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग दूसरी वाली भी हमारी एंडिंग की तरफ है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।